Okay. A very good morning to all students and welcome to EduFly JEE Prabal batch. So, like in previous class, we have discussed about the sexual reproduction. A very basic details we are going to study today about the events of sexual reproduction. What are the events in sexual reproduction? Okay. So there are three main events. That is, first is pre-fertilization. Pre-fertilization. In this process, two steps takes place. That is gametogenesis, genesis, and gamete transfer. Gamete transfer. The second point is after pre-fertilization, fertilization takes place. Okay. And the third is after fertilization, post fertilization. And in this process, zygote and embryogenesis. Done. So today we are going to discuss about these three steps. Done. So let's discuss the first part, that is pre-fertilization. Pre-fertilization. Fertilization होने के पहले कौन से स्टेप होती है? Pre-fertilization event. Pre-fertilization. And this pre-fertilization event is done by gametogenesis and gamete transfer. Gametogenesis and gamete transfer. Okay. Done. So in details we'll study about the gametogenesis. So let's begin the gametogenesis. Gametogenesis. The name itself says gamete means gamete का formation होगा, genesis मतलब formation, gamete formation. So in this process the formation of male and female gametes takes place. The formation of क्या होता है इसमें? मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होता है गैमेटोजेनेसिस में. वेरी सिंपल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ओके. Now you have to know gametes are of two types. One is monogamete, not it's mono, homogamete and heterogamete. Okay. Homogamete and heterogamete. So what is homogamete? Homogamete, the gametes which is similar in appearance. Homo मतलब same. Okay. होमो का मतलब सेम होता है, तो जो गैमेट्स देखने में सिमिलर होंगे, जैसे कि मेल और फीमेल दोनों ही सिमिलर होंगे. द गैमेट्स विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस. Example is cladophora. A very common example is cladophora. Hetero means different. मतलब both male and female gametes will be of different size. Like homo में same होता है, इसमें different होता है. That means the gametes are morphologically distinct. The gametes are morphologically, देखने में दोनों ही गैमेट्स अलग होंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट. एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? आई शो यू द डायग्राम अबव सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो क्लेडोफोरा होता है ऐसे,
ऐसे होता है क्लेडोफोरा. सो दिस इज क्लेडोफोरा. ओके, तो देखिए दोनों गैमेट्स सेम है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स कहते हैं. और ह्यूमंस में जो हेटेरोगैमेट्स है, मेल और फीमेल दोनों ही डिफरेंट है. देखिए ये ओवा फीमेल का है. फीमेल रिलीजेस एग फ्रॉम द ओवरी एंड दिस इज मेल का ऐसा होता है, दिस इज द स्पर्म. तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर देयर, जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, दोनों ही अलग है, तो ये हेटेरोगैमेट्स है. हो गया. स्पर्म की साइज बहुत स्मॉलेस्ट सेल जो होता है ना ह्यूमंस बॉडी में, जो मेल्स में, वो है स्पर्म. बहुत छोटा होता है कंपेयर टू ओवा का साइज बहुत बड़ा होता है. ओके, चलो दिस इज ऑल अबाउट गैमेटोजेनेसिस. और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है बताने को. नाउ विल सी अबाउट मेल गैमेट को क्या कहते हैं. मेल गैमेट इज नॉन एज एंथेरोजॉइड भी कहते हैं और स्पर्म. एंथेरोजॉइड और स्पर्म यू कैन से. ओके, मेल गैमेट को क्या कहते हैं, एंथेरोजॉइड. और फीमेल को क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज नेक्स्ट क्लासेस ऑफ रिप्रोडक्शन आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी, स्पर्म एंड ओवरी. फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, इट्स एग और ओवम उसको कहते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल और फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स. That is, first we are going to study about the plants and then after that we are going to study about the animal. Sexuality in organisms. The very first terminology is homothalic. Homothalic or you can say monoecious. देखो, homo means same, mono means one. तो this term is used to describe the bisexual कंडीशन ऑफ प्लांट. होमोथैलिक मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट. और बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट को ये डिस्क्राइब करता है, ये टर्मिनोलॉजी. दिस होमोथैलिक मीन्स बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट. दैट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है सेम प्लांट में. सपोज ये एक प्लांट है, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. कोई भी प्लांट होगा, फ्लावर है इसके, तो ये स्टेमन होते हैं, ओवरी होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स. ठीक है, तब तक जान लीजिए कि बाइसेक्सुअल में क्या होगा, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होगा. क्या होगा, मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन सेम प्लांट. एक ही प्लांट में होगा, अलग अलग आई मीन मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. डन. होमोथैलिक के बाद बात करते हैं हेटेरोथैलिक. हेटेरोथैलिक क्या होता है, हेटेरोथैलिक में यूनिसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट यू कैन से. यहाँ क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विल बी इन सेपरेट प्लांट. क्या होगा, सेपरेट प्लांट. Male and female in reproductive structure in different plant. Okay, so this is all about homothelic, heterothelic. Many more terminology are yet to discuss. चलो, this is done. Now we'll see about some terminology that is being used in plant, that is staminate you can say. Unisexual male flower
मेल फ्लावर जो दैट विल बियर स्टेमेंस। स्टेमेंस क्या होता है अब मैं बताती हूँ। जैसे कि ये प्लांट है, आपने हिबिस्कस देखा होगा, सपोज हिबिस्कस का फ्लावर है ये, तो यहाँ जो छोटे 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 होते हैं ना वो स्टेमेंस होते हैं, सॉरी दैट इज़ पॉलन, ये स्टेमन होता है, ये वो पॉलन होता है, ठीक है। चलो, तो मेल फ्लावर बियरिंग स्टेमेंस, ओके। उसके बाद होता है पिस्टिलेट। स्टेमन मेल है तो पिस्टिलेट इज फीमेल, मतलब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर bearing stamens, okay। चलो, next terminology is monoecious। Monoecious means when the both male and female flowers may be present on same individual। मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ओके, ऑन सेम प्लांट। एग्जाम्पल इज वेरी कॉमन, एग्जाम्पल इज कोकोनट। कोकोनट बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मोनोशियस का। ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने 11th में डिस्कस की है, तो मैं जस्ट एक ओवर भी आपको बता के चलती हूँ। डाइशियस क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल। जब मोनोशियस मतलब सेम होगा तो डाइशियस डिफरेंट इंडिविजुअल में क्या होगा? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स are present on different plant। एग्जाम्पल इज पपाया, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है पपाया है, एंड डेट पाम यू कैन से। डन। सो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो थी we all are going to discuss about sexual reproduction in flowering plants, the second chapter of reproduction, okay। तो वहाँ ये सारे टर्मिनोलॉजी काम आएंगे। so this terminology you have to know from now itself, okay। so now we'll see about sexuality in humans। humans में कौन कौन सी, या in animals you can say sexuality in animals, which terminology are being used? sexuality इन एनिमल्स, ओके। कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज किए जाते हैं? फर्स्ट इज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल क्या होगा? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स जो है सेम, एनिमल्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों होगा। एनिमल्स हैविंग बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ होगा? उसे इंडिविजुअल में मेल और फीमेल उस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रहेगा, दोनों ऑर्गन्स रहेगा, मेल भी रहेगा फीमेल भी रहेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एनिमल्स। जैसे एग्जाम्पल बहुत कॉमन है अर्थवर्म। अर्थवर्म बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। फिर लीच है, आप लोग ने देखा होगा अर्थवर्म की स्टडी मैंने जब एनिमल किंगडम में बताया था, वहाँ पे क्लास 11th के एनिमल किंगडम के नोट्स देखिएगा, वहाँ पे मैंने बताया है अर्थवर्म की डिटेल्स में, बिकॉज वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है सेम बॉडी में रहते हैं, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। नेक्स्ट इज आफ्टर हर्माफ्रोडाइट इट्स यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के बाद यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होगा? मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। एक ऑर्गेनिज्म में मेल होगा या तो फीमेल, जैसे ह्यूमंस, मेल में सिर्फ मेल ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में फीमेल ऑर्गन्स होते हैं ना। एनिमल्स हैविंग ओनली
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या तो मेल या तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा। चलिए, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स प्लांट्स कंप्लीटेड। नाउ विल सी अबाउट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसा होता है प्लांट्स एनिमल्स में ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन आप लोग को पता है क्या क्या होता है सेल डिवीजन, मैं यहाँ लिखती हूँ, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस, टू सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक। सारे गैमेटोजेनेसिस में इंक्लूड होंगे। ओके, तो सेल डिवीजन क्या क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है लाइक मोनेरा, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, उनमें क्या होता है हैप्लॉइड होता है। सेल डिवीजन जो है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऐसे लिखो ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरा, पैरेंटल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पेरेंट्स की बॉडी की बात करेंगे, पेरेंट्स है तो सेल डिवीजन होके बेबी फॉर्मेशन होगा। सो पैरेंटल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरा, ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड। दैट मीन्स उनका जो गैमेट फॉर्मेशन होगा n नंबर ऑफ सेल्स होंगे, और सेल डिवीजन क्या होगा उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, गैमेट कैसे प्रोड्यूस होगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन, इसलिए हैप्लॉइड नंबर होगा। माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन दो डिवीजन है, इसी का प्लूरल फॉर्म माइटोटिक होता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। ओके, जो ये मोनेरा और ब्रायोफाइट्स जो है प्लांट का पार्ट है, वो सारे लोग, मोनेरा में जनरली क्या होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और वो सब, उनमें तो गैमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं है, वो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उनमें क्या होगा माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है पैरेंटल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सारे प्लांट्स के हैं। टेरिडोफाइट्स आप सबने सुना होगा, वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में क्या होता है, एंड ह्यूमंस, इन सब में क्या होता है डिप्लॉयड होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ सेल्स। गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मियोटिक डिवीजन से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। जर्म सेल्स जो डिवीजन मैंने कहा था ना, जर्म सेल डिवीजन के लिए मियोटिक होता है, और माइटोसिस कब होगा, बॉडी सेल डिवीजन का, जैसे कि सेल्स हो गया, टिश्यूज फॉर्म करने के लिए, ऑर्गन फॉर्म करने के लिए हम माइटोसिस होगा। लेकिन जो जर्म सेल रिप्रोडक्शन होगा वो मियोसिस से होगा। ओके, एंड ह्यूमंस आर डिप्लॉयड मतलब ट्वाइस एन नंबर ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम यू कैन से, और उनका क्या होता है, दे प्रोड्यूस गैमेट बाय मियोटिक, इससे प्रोड्यूस करेंगे गैमेट। ओके, दे प्रोड्यूस गैमेट बाय मियोटिक, MEIOTIC, मियोटिक डिवीजन। हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। वो हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, सब में बता दिया मैंने। ठीक है, चलो नाउ विल टॉक अबाउट गैमेट ट्रांसफर। गैमेट बन गया, गैमेट इज डन, नाउ हाउ द गैमेट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, राइट। गैमेट कैसे ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर। नाउ विल स्पीक अबाउट गैमेट ट्रांसफर। चलिए, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, मेल फीमेल गैमेट्स। नाउ दैट गैमेट हैज टू reach, how that gamete will reach, the male gametes will reach to the female gametes, and always remember male gametes
मेल गैमेट्स इज मोटाइल, मतलब they can move from one place to another through a particular medium. Male gametes is motile and फीमेल कैसा होता है, स्टेशनरी, मतलब एक ही जगह पे बैठी रहती है फीमेल गैमेट्स, वो मूवमेंट नहीं करती है, वो एक ही जगह पे रहती है, वो इंतज़ार करती है कि एक मेल गैमेट कब आए. ओके, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी. ओके, समझ में आ गया आप सबको? बहुत ईजी है, बहुत बेसिक, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ. ओके, फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, समझ में आ गया. बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन कैसा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल होते हैं, दोनों ही मूवमेंट करते हैं. ऐसा नहीं कि फीमेल स्टेशनरी में मेल आ रहा है, नहीं, दोनों मूवमेंट करते हैं, मेल भी मूवमेंट करते हैं, फीमेल भी मूवमेंट करते हैं. तो उन सब ऑर्गेनिज्म से एक्सेप्शंस है, जैसे फंगाई एंड एल्जाई. एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई एंड सम एल्गी. कुछ एल्गी और फंजाई जो है वो उनका जो गैमेट्स है, मेल फीमेल दोनों ही मोटाइल होते हैं. क्या होता है? बोथ मेल फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल, मतलब मूवमेंट करते हैं. डन, चलिए, मोटाइल हो गया. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मीडियम. एक मीडियम चाहिए जिससे कि गैमेट मूवमेंट करेगा, मेल फीमेल के पास जाएगा, तो देयर शुड बी ए मीडियम थ्रू विच दैट गैमेट कैन मूव. ओके, अ मीडियम इज रिक्वायर्ड. A medium is required in order to move male gametes in order to which male gametes move. ठीक है, तो किसी किसी प्लांट्स में, लाइक एग्जांपल है आपका बहुत कॉमन एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. इन सब में मूवमेंट कैसा होता है? वाटर के थ्रू होता है. ये सारे ऑर्गेनिजम्स में वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं एंड दैट्स द रीज़न इनको वाटर चाहिए होता है फॉर देयर फर्टिलाइजेशन और फॉर देयर रिप्रोडक्शन. ओके, जैसे कि इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी हो गई, या फिर ब्रायोफाइट्स, प्लांट के पार्ट हैं ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स. दे नीड अ वाटर फॉर वाटर एज ए मीडियम. उनका वाटर ही मीडियम है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स जो है फीमेल के पास पहुंचते हैं. ठीक है, रही बात प्लांट्स की हो गई. नाउ विल टॉक अबाउट एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है? मेल गैमेट्स बहुत सारे, बहुत सारे मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं. कितने पता है आपको? कितने मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं? 150 मिलियन. 150 मिलियन गैमेट्स मेल. 150 मेल गैमेट्स आर रिलीज इनटू द फीमेल. और फीमेल क्या होता है? सिर्फ वन ओवा होता है, वन एग होता है फीमेल के पास. एंड यू नो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो फीमेल का जो एग होता है ना, दैट एग इज कब प्रोड्यूस होता है? ऐसा नहीं कि जब पुबर्टी होगा तभी एग प्रोड्यूस होगा. वो एग जब वो एज अ चाइल्ड, जब पेरेंट्स के वोम्ब में रहती है, द गर्ल चाइल्ड, एट दैट टाइम उसके बॉडी में एग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. एंड वो एग टिल द मेनोपोज रहता है. मेनोपोज तक वो सिंगल एग ही सारा काम करता है. तो इनमें क्या होता है? फीमेल्स में एग जन्म के पहले ही रिलीज हो जाते हैं. लेकिन मेल में क्या होता है? मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो है ना, 150 मिलियन एट ए टाइम स्पर्म रिलीज होता है. तो वो क्या होता है? पुबर्टी जब अटेंड करेंगे मेल्स, उसके बाद ही स्पर्म अपना प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. लेकिन एग क्या होता है? बर्थ के पहले ही एग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. तो क्या होता है कि इतने सारे मेल गैमेट्स होते हैं ना, बहुत सारे, मतलब स्पर्म, मतलब 150 मिलियन इज समथिंग लाइक बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं ना.
सो इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस। वही जो मैंने कहा, मेल गैमेट्स कितना होता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इज 1000 टाइम्स। ओवरी तो सिर्फ सिंगल एग रिलीज करती है, लेकिन स्पर्म्स बहुत सारे रिलीज होते हैं, 1000 टाइम्स मोर देन फीमेल गैमेट्स। ये होता है एनिमल में। ओके, इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ डिजीजेस रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब पढ़ने वाले इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गैमेट ट्रांसफर। हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बिफोर दैट यू हैव टू नो अबाउट द पॉलिनेशन। एनिमल में तो हो गया, प्लांट्स में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। बिफोर गोइंग टू फर्टिलाइजेशन विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल। पॉलिन कौन ट्रांसफर करेगा, हमेशा मेल ट्रांसफर करेगा, कहाँ, फीमेल की ओर। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from male to female is known as pollination. Okay, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, सेम प्लांट में ही मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो है पॉलिनेट करेंगे। सेम उनका जो ऑर्गेनिजम्स मेल और फीमेल होगा सेम ही प्लांट में होगा। क्रॉस क्या होगा, मेल ऑर्गन्स है जो पॉलिन्स को कहीं से लेके आके फीमेल को देंगे और वहाँ जाके पॉलिनेशन होगा, उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो क्या होता है, पॉलिन ट्यूब फॉर्म होता है। जो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मेल जो पॉलिन लेके आते हैं वो पॉलिन ट्यूब फॉर्म करते हैं, एंड दैट पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा मैंने बताया था, स्टिग्मा, और यहाँ पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा। पॉलिन ट्यूब कहाँ जर्मिनेट्स होंगे, ऑन द स्टिग्मा, एंड द पॉलिन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट्स। उस ये पॉलिन ट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें मेल गैमेट्स होते हैं, एंड पॉलिन ट्यूब्स जो हैं, पॉलिन ट्यूब्स विल कैरी द मेल गैमेट। ऐसे थोड़ी ना आएगा, एक ट्यूब रहती है छोटी सी, उसी में मेल गैमेट्स वो कैरी करते हैं। पॉलिन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट्स, pollen tube carrying the male gametes will reach the ovule। कहाँ ओव्यूल, मतलब फीमेल के पास जाएंगे, फीमेल के पास जाके एंड they'll discharge the male gametes near the egg। तो दिस इज पॉलिनेशन। क्या होता है ये पॉलिनेशन ना, पॉलिन ट्यूब कैसे फॉर्म होते हैं, ऐसे फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ एक बेसिक डायग्राम दिखा के बता देती हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन ऐसे होता है, फिर पॉलिन ट्यूब फॉर्म होगा, एंड पॉलिन ट्यूब में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, एंड नेक्स्ट विल बी, एंड देन इट विल फॉर्म फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू, ये प्रोसेस प्लांट में होता, रिमेंबर। ओके, चलो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन, द सेकंड पॉइंट। प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फॉर्म होगा, मेल एंड फीमेल फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन को क्या कहते हैं, सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ
fusion of male and female gametes and female gametes result in formation of diploid zygote. zygote हमेशा diploid होगी, this is 2n number, okay? Diploid zygote, that is twice n, and this process has a name, that is a terminology, and this is known as syngamy. Syngamy. Okay, so this is the definition of fertilization. Also क्या होता है, some female gametes they undergo the development of new organism. उनमें fertilization नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, parthenogenesis. क्या कहेंगे, parthenogenesis. Some female gametes undergo the development of new organism. Some female gametes, कुछ female gametes जो होते हैं undergo the development of new organism without fertilization. उनको क्या कहते हैं, parthenogenesis. न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट, मतलब इनमें जैसे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसीलिए इनको टर्मिनोलॉजी दिया गया पार्थेनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन. ओके, तो उनको क्या कहेंगे हम, पार्थेनोजेनेसिस. एग्जाम्पल होगा हनी बी, रोटिफर्स. एग्जाम्पल याद रखो, हनी बी, रोटिफर्स. ओके, चलो अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल एंड द अदर इज इंटरनल. एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज एक्सटर्नल. इंटरनल कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी. जैसे ह्यूमन्स से फर्टिलाइजेशन इनसाइड होता है, मेल गैमेट्स का फ्यूजन इनसाइड होता है. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड. सही है, बहुत इजी है ना. आउटसाइड एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड. इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कहाँ होगा, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में. and this takes place outside the body of an organism. Okay, एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस. बहुत कॉमन एग्जाम्पल फ्रॉग है. फिशेस का है, बाहर होता है फर्टिलाइजेशन. एम्फीबियंस आप लोगों ने सुना होगा, फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन बेसिकली उनके ब्रीडिंग सीजन लाइक रेनी डेज में होती हैं. फिर इंटरनल होगा ह्यूमन्स, बहुत कॉमन एग्जाम्पल याद रखिए, ह्यूमन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, द थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास. ओके, सो नाउ विल सी अबाउट थर्ड पार्ट, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया. तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दिस इज नॉन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. जाइगोट के बाद जो भी स्टेप्स होंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, चलो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो भी होगा वो एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, जो यूट्रस में होगा. ओके, तो फर्टिलाइजेशन और यू कैन से
events in sexual reproduction after the formation of zygote. Events in sexual reproduction after the formation of zygote. After the formation of zygote is called post fertilization. Is called post fertilization. हो गया. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एम्ब्रायोजेनेसिस. एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट. एम्ब्रायोजेनेसिस. देखिए टर्मिनोलॉजी से ही आपको पता करना होगा. एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा कहाँ से? जाइगोट से. द प्रोसेस ऑफ formation of zygote, sorry, process of formation of embryo कहाँ से होगा? from zygote, and this is known as embryogenesis. इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको टेबुलर फॉर्म में बता देती हूँ. ओके, एम्ब्रायोजेनेसिस का इजी रहेगा याद करना आप लोगों के लिए. चलो, एम्ब्रायोजेनेसिस. सबसे पहले क्या होगा? जाइगोट फॉर्म होगा. जाइगोट से ही तो एम्ब्रायो फॉर्म होगा ना. तो वो जाइगोट क्या होगा? उसमें सेल डिवीजन फॉर्म होगा. कौन सा सेल डिवीजन फॉर्म होगा? पहले मियोटिक नहीं होगा, जर्म सेल थोड़ी ना प्रोड्यूस होगा. पहले उसका ऑर्गेन बनना होगा, टिश्यू से ऑर्गेन बनेगा. तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, मतलब बॉडी सेल डिवाइड्स होंगे. उसके बाद क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन होगा. सेल डिफरेंशिएशन होगा. देन क्या होगा? स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म होंगे. स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सेल ही टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू क्या करेंगे? ऑर्गेन बनाएंगे. एंड दैट ऑर्गेन्स के थ्रू, ऑर्गेन होने के बाद वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. समझ में आया? सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस. जस्ट नोट इट डाउन. और कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए हैं बताने को. ओके, चलें. एम्ब्रायोजेनेसिस इज डन. सी सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ओविपेरस है, कुछ विविपेरस है. एनिमल्स कुछ ओविपेरस और कुछ विविपेरस है. ओविपेरस मतलब क्या होता है? दे विल गिव बर्थ, दे ले एग्स, और उस एग से न्यू वंस, यंग वंस आएंगे. तो दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स. और कुछ अनफर्टिलाइज्ड भी होंगे जो बच्चा होना इम्पॉसिबल होगा. विविपेरस क्या होगा? दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. इसका एग्जाम्पल हो गया रेप्टाइल्स. स्नेक हो गया, एग्स देते हैं. फिर बर्ड्स हो गया, सारे बर्ड्स तो एग ही रिलीज करते हैं ना. लेकिन विविपेरस बहुत कॉमन एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमंस हैं. व्हाट हैपेंस इन ओविपेरस? वो क्या करते हैं? एग, दे ले एग्स एंड दैट एग इज वेरी हार्ड शेल. शेल बहुत हार्ड होता है, हार्ड शेल कवरिंग होती है, इतना इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट दे विल कीप इन द सेफ एनवायरनमेंट. बहुत सेफली उसको अंडा अगर होता है, उस अंडे को बहुत सेफ जगह पे रखते हैं, ताकि आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड द यंग वंस विल हैच आउट. और विविपेरस में क्या होता है? इन केस ऑफ एनिमल्स प्रॉपर एम्ब्रायनिक केयर होता है और प्रोटेक्शन रहता है. तो इसलिए क्या होता है ना कि लाइक इन एनिमल्स जिनके इनसाइड होता है फर्टिलाइजेशन, so maximum chances of survival is there for the embryo. Okay,
So this is all about oviparous and viviparous. Next we'll talk about zygote in flowering plant. फ्लावरिंग प्लांट में zygote कैसा होता है? एनिमल्स तो हमने देख लिया, अब we will talk about zygote in flowering plant. Okay, चलो. Zygote in flowering plant. Zygote is formed inside the ovule. Ovule क्या होता है? ओव्यूल में ही फीमेल ऑर्गेन्स होता है, ओवरी. ओवरी में ही क्या होगा, इसका रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा. तो जाइगोट कहाँ फॉर्म होगा? जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हो गया, ओव्यूल में होगा. ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीपल्स, पीटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ. फर्टिलाइजेशन होने के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, उसका जो स्टेमन होगा, जैसे कि ये स्टेमन है ना, ये वाला, दिस विल फॉल ऑफ. स्टेमन, सिपल्स छोटा छोटा होता है, और पीटल्स क्या होगा, फ्लावर का जो लीफ है ना, लीफ नहीं, जो फ्लावर है उसी को पीटल्स कहते हैं, फ्लावर का जो नहीं, लीफ नहीं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टेमन्स, पेटल्स एंड सिपल्स. फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे गिर जाते हैं, फॉल ऑफ. ओके. नेक्स्ट इज जाइगोट. क्या होगा, जाइगोट में एम्ब्रायो फॉर्म होगा, जाइगोट में ही एम्ब्रायो फॉर्म होगा. ओके. नेक्स्ट ओव्यूल्स में, ओव्यूल्स जो ओवरी है उसमें सीड फॉर्म होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, और ओवरी से फ्रूट होगा. ओवरी ही जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस करेगी इन केस ऑफ प्लांट्स. ओके. थिक वॉल ऑफ फ्रूट को क्या कहते हैं, पेरिकार्प. थिक वॉल ऑफ फ्रूट को क्या कहेंगे, मतलब जो वॉल है, आउटर लेयर जो कहते हैं ना फ्रूट का, आउटर लेयर, इसको क्या कहेंगे, पेरिकार्प. इट्स नोन एज पेरिकार्प. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. बेसिक्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल्स, सबके बारे में बेसिक्स हम पहले डिस्कस करते हैं. देन वील गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर. द सेकेंड चैप्टर इज sexual reproduction in flowering plants. Then we'll go for the human part. Okay, so with this I have completed today's class, so thank you so much.